آپ کو بتائیں کہ پیٹرول پمپس پر پیٹرول اور ڈیزل کی چوری کی روک تھام کے لیے سندھ حکومت متحرک ہو گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کے معاون خصوصی عثمان غنی کی جانب سے مختلف پیٹرول پمپس کا دورہ کیا گیا۔ پی ایس او کے 2 پمپ سے ڈیزل اور پیٹرول کی چوری بھی پکڑی گئی۔ رپورٹ کریں گے کاوش میمن۔ پیٹرول چوری کرنے والوں کی شامت آ گئی۔ سندھ حکومت نے مافیا کے خلاف ڈنڈا اٹھا لیا۔ آئی ڈی سی بنس روڈ کینٹ اسٹیشن اور پریس کلب چوک پر قائم پیٹرول پمپس پر کارروائیاں کی گئیں، جبکہ گجری پر قائم پی ایس او پیٹرول پمپ پر مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ پمپ کے مالک نے افسران کو کارروائی سے روک دیا۔ ڈال رہے ہیں نا، وہ آپ کو کتنا مانگا ہے؟ 2 لیٹر آپ نے اس میں 2 لیٹر آیا، 2 لیٹر بند ہو گیا نا، کیوں بند ہو گیا؟ معاون خصوصی وزیر اعلیٰ سندھ عثمان غنی نے کہا کہ مزاحمت ہوتی ہے مگر ہم اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، غریبوں کا خون نچوڑنے نہیں دیں گے۔ تو ہم نکلے ہوئے انشاءاللہ کوشش کریں۔ آپ نے خود نے دیکھا ابھی کتنا فرق تھا اس میں، ڈیزل میں کافی فرق تھا نا۔ اسی طرح پیٹرول میں بھی ہے، اس کو بھی سیل کر دیا ہم نے، اور انشاءاللہ آگے جا کے اور بھی کریں گے، کیونکہ دیکھیں اب ہم بھی ایک چھوٹے طبقے سے واسطہ رکھتے ہیں۔ اب ایک موٹر سائیکل والا آتا ہے، اس کی تنخواہ کتنی ہوتی ہے؟ 30,000 35,000۔ اگر اس کا بجٹ اگر اندازہ لگائیں، اگر روز کا اس کا 20 روپیہ بھی چلا جائے تو مہینے کے کتنے 600 روپے اس کے گئے۔ ڈپٹی کنٹرولر طلب و رسد ریحان نے بتایا کہ 5 پمپس پر کارروائیاں کی گئیں، 2 پمپس پر پیٹرول کی چوری پکڑی گئی۔ مین پاور کی کمی ہے، ایک ہی وقت میں ہر جگہ نہیں پہنچ سکتے۔ دیکھیں ہر جگہ تو میں نہیں کہوں گا کہ ہر جگہ یہ ہے، لیکن ہاں یہاں پر اگر یہ 10 ml جو ہے وہ کر رہا ہے تو ایک لمٹ ہوتی ہے جو کہ ٹالریبل ہے، کیونکہ مشین ہے یہ تھوڑی سی کبھی آگے پیچھے بھی ہو سکتی ہے، لیکن اگر اس سے زیادہ ہے تو اس کا مطلب کہ یہ جو ہے وہ پھر غلط کام ہو رہا ہے اور اس کو جو ہے وہ روکنا ہمارا کام ہے۔ وزیر اعلیٰ کے معاون خصوصی کا کہنا تھا کہ مراد علی شاہ کے احکامات پر کارروائیوں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ کیمرہ مین سجاد رئیس کے ساتھ کاوش میمن، سٹی 21۔ کو بتائیں کہ سندھ اسمبلی کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی صوبے کی معاشی صورتحال میں سدھار کے لیے متحرک ہو گئی۔ 5 ماہ کے دوران 15 ارب روپے سرکاری خزانے میں جمع کہ الیکٹرک کی جانب سے 29 ارب روپے کے واجبات ادا کرنے کا یقین دلوایا گیا ہے۔ مزید جانتے ہیں عاجز جمالی کی رپورٹ میں۔ نادہندہ سندھ اسمبلی کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے ریڈار پر آ گئے۔ سندھ اسمبلی کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے 6 ماہ کے دوران مسلسل اجلاس، تمام سرکاری محکمے حساب کتاب اور اپنے پیراج سیٹ کے لیے طلب۔ چیئرمین پی ایس سی نثار احمد کھوڑو کہتے ہیں 5 ماہ کے دوران 15 ارب روپے واپس کرائے۔ پی ایس سی سرکاری محکموں کے احتساب کا پہلا قدم ہے۔ میری نظر میں پی ایس سی فرسٹ سٹیپ ہے اکاؤنٹیبلٹی کا۔ یہ جو پیراز ہیں وہ 2008 سے ہیں، آج کل کے نہیں، 2008 سے ہیں، اور مجھے حیرت ہوئی تھی کہ پی ایس سی میں 5000 کے قریب آڈٹ پیراز پینڈنگ ہیں، اور میں رفلی آپ کو شاید بتا سکوں کہ ابھی تک ہم اس 5 مہینے میں 15 ارب روپے کے قریب ہم نے حکومت کو ریکوری کروائی ہے۔ نثار احمد کھوڑو کا کہنا ہے کہ الیکٹرک نے سندھ حکومت کے 29 ارب روپے ادا کرنے کا یقین دلایا ہے۔ ریکارڈ پیش نہ کرنے والوں کے خلاف کارروائی ہوگی۔ کے الیکٹرک سے میں نے منوایا تھا کہ وہ ہر بل میں الیکٹریسٹی ڈیوٹی وصول کرتے ہیں، اور وہ جو ڈیوٹی ہے وہ حکومت کو جمع ہونی چاہیے، اور وہ سالوں سے رکی ہوئی ہے، اربوں روپے کی ہے، 29 ارب روپے کی رکی ہوئی ہے۔ سندھ اسمبلی میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی سرکاری محکموں کے احتساب کا بڑا فورم ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ پورا سال کمیٹی اداروں کا کتنا احتساب کرتی ہے۔ کیمرہ مین نوید الرحمان کے ساتھ عاجز جمالی، سٹی 21۔ اور ناظرین، 26ویں آئینی ترمیم اور ججز کی تقرری وکلاء کی جانب سے تحریک چلانے کا اعلان کر دیا گیا۔ سٹی کورٹ میں پریس کانفرنس کے دوران اسلام آباد جانے کا بھی بتا دیا گیا۔ رپورٹ کریں گے جواد آصف۔ بعد میں سجے گی بڑی بیٹھک، وکلا رہنماؤں نے سڑکوں پر آنے کا اعلان کر دیا۔ سٹی کورٹ میں کراچی بار ایسوسی ایشن کی پریس کانفرنس میں وکلا رہنماؤں نے عزم ظاہر کر دیا، نوجوان وکلا کو ساتھ چلنے کی تلقین بھی کر دی۔ سابق صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن منیر ملک بولے، معاملہ 2007 سے بھی زیادہ تشویشناک ہے، عدلیہ سے آئین کی پاسداری کی توقع رکھتے ہیں۔ ہماری آواز جو ہے وہ اس کمرے تک جائے گی جہاں 10 تاریخ کو سپریم کورٹ نے جوڈیشل کاؤنسل جے سی پی نے سپریم کورٹ میں 8 اپوائنٹمنٹس کرنی ہیں۔ ہم
अदलिया से ये तवक्को रखते हैं कि वो अपने आइन की पासदारी करेंगे। साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन अली अहमद कुर्द ने कहा कि किसी सूरत अदलिया की आज़ादी पर हमला कबूल नहीं करेंगे। हमने तो जो कुछ करना है हम करेंगे, बिल्कुल करेंगे, और दुनिया देखेगी, ऐसी दुनिया देखेगी कि जैसे हर वकील, पहले हमने देखा था कि हर वकील को उस 2007 की तहरीक के हवाले से सर उठाकर चलने का एक जज्बा पैदा हुआ था। हमारा आपसे ये वादा है। कराची बार के सदर आमिर नवाज वड़ाइश ने ऐलान किया है कि एक काफले की सूरत में इस्लामाबाद जाएंगे। इंशाअल्लाह ताला कराची बार एसोसिएशन जो है सैटरडे को यहाँ से एक काफले की सूरत में दोस्तों के साथ निकलेगी और इस्लामाबाद में जाएगी। वुकला रहनुमाओं ने तमाम बार एसोसिएशन और वुकला को तहरीक के साथ चलने की दावत भी दे दी। कॉन्फ्रेंस में सिंध बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन काशिफ हनीफ और कराची बार के जनरल सेक्रेटरी रहमान कुराई भी शरीक थे। कैमरामैन मोहम्मद अली के साथ मोहम्मद जवाद आसिफ, सिटी 21। आगे बढ़ें और आपको बताएं, पाकिस्तान कस्टम्स और कस्टम एजेंट्स एसोसिएशन के दरमियान तनाज़ा शिद्दत अख्तियार कर गया है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्लियरेंस बंद करने के हवाले से खत लिख दिया गया है। कस्टम एजेंट्स एसोसिएशन ने FPCCI समेत मुल्क की तमाम चैम्बर्स को खत लिखकर आगाह कर दिया है। रिपोर्ट करेंगे अशरफ खान। कस्टम एजेंट्स और पाकिस्तान कस्टम के दरमियान तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। इंपोर्ट एक्सपोर्ट की क्लियरेंस बंद करने के हवाले से खत लिख दिया गया। FPCCI समेत मुल्क की तमाम चैम्बर्स को आगाह कर दिया गया। कराची चैम्बर, हैदराबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इस्लामाबाद, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स, रावलपिंडी चैम्बर, एप्टिमा, पाकिस्तान केमिकल एंड डाइस मर्चेंट एसोसिएशन समेत तमाम एसोसिएशन को खत लिख कर आगाह कर दिया। कस्टम एजेंट एसोसिएशन के चेयरमैन सैफुल्लाह खान ने कहा कि तमाम एसोसिएशन अपनी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की क्लियरेंस का काम का इंतजाम खुद कर लें। ये भी कहा कि 15 दिन बाद कस्टम एजेंट्स एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का काम बंद कर देंगे। चेयरमैन पाकिस्तान कस्टम एजेंट एसोसिएशन का कहना है था कि कस्टम हुकाम ने हमारे 45 एजेंट्स के लाइसेंस गैर कानूनी तौर पर मुअत्तल कर दिए हैं। कस्टम एजेंट की मुअत्तली बास कस्टम अप्रेजिंग ऑफिसर की जानिब से इक़दामात पर मबनी है। साफ मुतालबा किया कि लाइसेंसों की मुअत्तली पर नजरसानी की जाए और इसकी मुकम्मल छानबीन होनी चाहिए, और हम कस्टम अफसरान के गैर इखलाकी और गैर पेशा वाराना रवैये से निमटने के लिए ताजिर तंजीमों से मदद चाहते हैं। अशरफ खान, सिटी 21। आपको बताएं कि बुनियादी सहूलियात की फराहमी रियासत की अव्वलीन जिम्मेदारी है। लियारी के अवाम इन बुनियादी सहूलियात से भी महरूम हैं। लियारी में गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। शहरी गैस की किल्लत के बायस परेशानी का शिकार है। महंगे दामों गैस सिलेंडर खरीद कर गुजारा करने पर मजबूर हैं। रिपोर्ट करेंगे रिमशा इस्माइल। लियारी में गैस का संगीन बहरान, चूल्हे ठंडे पड़ गए। लियारी में शहरी गैस की अदम दस्तयाबी के बाइस मुश्किलात का शिकार हो गए हैं। गैस की किल्लत ने इन्हें सिलेंडर खरीदने पर मजबूर कर दिया है। कुछ शहरी तो गैस सिलेंडर महंगा होने के बाइस होटलों से खाना खरीद कर गुजर बसर कर रहे हैं। ये सिलेंडर से गुजारा करते हैं तो क्या नाम है, मसला ये होता है लकड़ियाँ तो यहाँ जलाया नहीं जाता है, समझ में शहर है, जंगल तो है नहीं, तो हर आदमी जो है आप जाए किसी भी ये गैस वालों से पूछें तो मकसद ये रश होता है हर वक्त जो है ना, लेकिन सब्र करते हैं। अल्लाह मालिक है, पाकिस्तान के लिए अल्लाह अच्छा करे, हमारा मुल्क को, लियारी को, सब दुनिया को, जितने मुसलमान हैं। होटल मालिकान भी शिकवा शिकायत करते नजर आए। उनका कहना है कि गुज़िश्ता 3 बरसों से गैस न होने से शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। और इस सिलेंडर से हम चला रहे हैं, सिलेंडर से मेरे को बहुत महंगा पड़ रहा है। ये गैस हमारा नहीं आते 3 साल से ज़्यादा टाइम हो गया। हम लोग सिलेंडर से काम कर रहे हैं, सिलेंडर की वजह से हमारा को बहुत खर्चा हो रहा है। नहीं, हम बाहर से खाना खरीद के घर में गैस नहीं आता है, गैस का बड़ा मुश्किलात होते हैं, तो ये खर्चा डबल होता है ना, उसका गैस का भी बिल आते हैं ना, और गैस नहीं आते बिल इसका आ जाते हैं, और इसका वो जो आटा हम पकाते हैं होटल पे उसका भी पैसा हम भर जाते हैं, डबल खर्चा होते हैं। गैस की फरहमी और तकसीम के निज़ाम में खराबियों और करप्शन से न सिर्फ लियारी में घरेलू सार्फिन बल्कि कारोबार हजरात भी मुतासिर हो रहे हैं। लियारी के शहरी महंगे दामों गैस सिलेंडर खरीदने पर मजबूर है। उनका यही मुतालबा है कि फौरी तौर पर गैस के बहरान को हल किया जाए। कैमरामैन सैयद शाजेब के साथ रिमशा इस्माइल, सिटी 21। आपको बताएं कि 18 साला मुनील फारूकी ने पाकिस्तान की सबसे कम उम्र कमर्शियल पायलट बनने का एजाज़ अपने नाम कर लिया।
उनका कहना है कि कोई भी ख्वाब बड़ा नहीं होता, जरूरत बस लगन और मेहनत की होती है। रिपोर्ट करेंगे काविश मेमन। उम्र सिर्फ 18 साल लेकिन कारनामा बेमिसाल। पाकिस्तान की कम उम्र तरीन पायलट मुनील फारूकी मरकज़ निगाह बन गए। कराची की नौजवान खातून ने अपनी मेहनत और अज़म से पायलट बनकर ख्वाबों को हकीकत में बदल दिया। मुनील ने कई मुश्किलात का मुकाबला किया और पायलट की तरबियत मुकम्मल की। मैंने अपना ओ लेवल स्कूल से किया था और ए लेवल्स मैंने डायरेक्टली मई जून में मैंने अपने ओ लेवल्स दिए थे और अक्टूबर नवंबर में मैंने अपने ए लेवल्स की दोनों साल दे दिए थे। तो इसमें मेरा अप्रॉक्सीमेटली 3 इयर्स तो इसी में बच गए थे। और फिर फ्लाइंग में मैंने अपने जो 16 एग्जाम्स होते हैं वो फर्स्ट अटेम्प्ट में सारे क्लियर किया था एंड मैंने वो भी जैसे महीने के 4 करके दिए थे, तो मेरा इसमें टाइम और बच गया था। एंड देन फ्लाइंग मैंने एक्सपेडाइट करवाई थी अपनी, सो इंस्टेड ऑफ फ्लाइंग 2 आवर्स अ वीक मैंने 2 आवर्स अ डे फ्लाई किया था। तो इस तरीके से आई वाज एबल टू सेव अराउंड 5 इयर्स फॉर माय फ्लाइंग। मुनील फारूकी बोली, बचपन से पायलट बनने का शौक था। मेरी कामयाबी को मद्देनजर रखकर खवातीन अपने ख्वाबों को हकीकत बनाएं। उनको सिंपली बोलूँगी, जो भी फॉर एग्जांपल पेरेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपके बच्चे का पैशन है आप उसको वो कंप्लीट करने दो, आप उसको उस पर मेहनत करने दो, क्योंकि अल्लाह मियाँ जो है वो मेहनत और पैशन देखते हैं। उनको जब नजर आएगा किसी तरफ से आप मेहनत करो तो दरवाजा आपकी ऑटोमेटिकली खोलेंगे। एंड कोई चीज़ जो आप पैशन से करो फॉर योर सेल्फ, उसमें आप जितना एक्सेल कर सकते हो, आई डोंट थिंक आप किसी में भी एक्सेल कर सकते हो। पाकिस्तान में खवातीन पायलट्स की तादाद में इजाफा हो रहा है। कई खवातीन ने हवाबाजी के मैदान में नुमाया कामयाबियां हासिल की हैं। खवातीन अपने हौसले और मेहनत से हवाबाजी के मैदान में नुमाया मकाम हासिल कर रही हैं और दीगर खवातीन के लिए मिसाल बन रही हैं। कैमरामैन कमर आब्दी के साथ काविश मेमन, सिटी 21। आगे बढ़ें और आपको बताएं, आर्ट्स काउंसिल में लकड़ी के फनपारों की मुनफरिद नुमाइश कल से सजने को तैयार है। लकड़ी के पेचीदा फनपारे ईरानी मुसव्विर की महारत का शाहकार है। परवेज अब्दी की नुमाइश के हवाले से आज वर्कशॉप का इनेकाद। उन्होंने कहा कि लकड़ी पर शाहकार तख्लीक करना आसान काम नहीं होता। रिपोर्ट करेंगे सैयद जुबैर राशिद। लकड़ी पर कहंदा हैरान कुन कहानियाँ, मनाजिर मंजर आम पर लाने की तैयारी। आर्ट्स काउंसिल में फन का एक और रंग, अपनी रनाइया बिखेरने को बेताब। लकड़ी पर बने फन पारों की नुमाइश कल से 9 फरवरी तक होगी। ईरानी मुसव्विर परवेज अब्दी ने लकड़ी के पेचीदा और दिलकश फन पारे तख्लीक कर दिए। वर्कशॉप में बताया कि तख्लीकात में वक्त और महारत दोनों की जरूरत है। اولا خیلی خوشحالم که این دومین بارمه دارم میام پاکستان و هر دو بارش هم با گرمی از کارهای من استقبال شده و فوق‌العاده این باعث میشه به من انرژی. چیزی که میتونم توضیح بدم اینه که امروز هنرجوهای عزیز ما نشسته بودن. इनका जो काम है वो बेसिकली जो है वो स्क्रैप्चुअल एंड मोज़ाइक वुड के ऊपर जो है वो काम होता है, जो मुनब्बत और मुअर्रक़ फ़ारसी के अंदर जो है वो कहलाता है। और बहुत ही ज़्यादा जो है वो इनको अगेन हमेशा जो है वो यहाँ पर वेलकम मिलता है। और आज भी जितने भी स्टूडेंट्स थे आर्ट काउंसिल के, उन्होंने बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हमसे किए और हमने जो है वो उनकी आंसरिंग जो है वो उनको की। फ़नून लतीफ़ा के शायकीन और आर्ट्स काउंसिल पाकिस्तान के तलबा ने वर्कशॉप के इनेकाद को खूब सराहा। इनके काम में बहुत खूबसूरती है कि इन्होंने नेचर बहुत वुड से जो है वो इन्होंने काम किए, डिफरेंट दरख्तों की लकड़ियाँ इन्होंने यूज़ की हैं। इसमें हिम्मत और पेशेंस चाहिए, बहुत सब्र चाहिए और बर्दाश्त चाहिए कि आप इतने टाइम तक एक चीज़ पर लगे रहें और वो चीज़ फिर ज़ाहिर खूबसूरत तो निकलती है। इनका काम ही बोल रहा है कि कितनी मेहनत और कितनी लगन इसमें लगाई है। बाकी ये कि हमारे पास ये आए हैं वर्कशॉप के लिए, तो हम तो बहुत खुश हैं एज अ स्टूडेंट और लुकिंग फॉरवर्ड कि हम भी कुछ इससे मिलता जुलता कर पाएँ आगे अपने फ्यूचर में। शानदार नुमाइश आर्ट्स काउंसिल और कौंसल खाना इस्लामी जमहूरिया ईरान कराची के इश्तराक से मुनक्किद किया जा रहा है। ये पाकिस्तान और ईरान के दरमियान सकाफती हम आहंगी को फरोग देने में अहम संग मील साबित होगा। कैमरामैन कमर आब्दी के साथ सैयद जुबैर राशिद, सिटी 21। न्यूज़ स्टूडियो से फल वक्त इतना ही।